Hello students, good morning to all of you in class 12 commerce. We are studying the chapters accounting for partnership firms fundamentals, and today's our topic is fluctuating capital, how it is prepared fluctuating capital. In this video I will try to solve a question for you that you can learn and how it is prepared fluctuating capital. If in the question demand the fluctuating capital, how it is prepared. So take question number 4a of your textbook, DK Goel. So let's start the question. The question is this. Question is given here. Question number 4a I have taken. On 1st April 2018, AB commenced the business with a capital of 6 lakh and 12 lakh respectively. On 31st March 2019, the net profit before taking into account the provisions of the deed was 2,40,000. Interest on capital is to be allowed 6% per annum. B was entitled to the salary of 60,000 per annum, and drawing of partners A and B is 60,000 and 40,000 respectively. The interest on drawing for the A being 2,000 and B being rupees 1,000. Assuming that A and B are the equal partners, prepare the profit and loss appropriation account and partners capital account as on 31st March 2019. So first of all, in the answer given that we have to calculate the divisible profit. There are some provisions are given that should be provided to the partners in the form of the interest on capital or in the form of salary or commission. So first of all, we have to prepare the profit and loss appropriation account for calculation of the divisible profit. So let's start. So how it is prepared? It is just prepared as the profit and loss account. You have already studied about the profit and loss account. In the debit side we write the expenses, in the credit side we write the income. So first of all, we will prepare the format. We divide the whole copy in two sides. One side may be the credit, one side is debit. Okay, we take here, we will write here the profit and loss appropriation account. Here we will write the particular amount and amount. Sorry. In the question given, as you can say, in the question given on 31st March 2019, the net profit before taking into account the provisions, मतलब बिना प्रोविजन को कैलकुलेशन या फिर टेकन इनटू अकाउंट जो हमारे पास प्रॉफिट है 2,40,000 के हमारे पास प्रॉफिट है, बिना कोई डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए, प्रॉफिट से बिना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हमारे पास 2,40,000 रुपये का हमारे पास क्या है प्रॉफिट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द इन द क्रेडिट साइड द हियर डेबिट, हियर इज द क्रेडिट. We will first write here the net profit 2,40,000. So now we will take the what will be the interest on capital. Interest on capital is 6%. Interest on capital is to be provided 6% per annum. So interest on capital हमारा हो जाएगा 6%. यहाँ लिख देंगे हम लोग टू interest on
कैपिटल, ए के केस में और बी के केस में। तो ए के केस में ए की कैपिटल थी और 6 लाख रुपए की, तो 6 लाख पे 6% और 2 लाख पे 6%। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तो 36,000 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12,000। तो ये हो गया हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, बी इज इंटाइटल टू सैलरी ऑफ 60,000। तो बी की सैलरी, यानी आप बुक में देखें तो बी की सैलरी टू बी सैलरी 60,000 हम लोग पे दे देंगे। अब हम लोग को क्या करना है, ड्राइंग ऑफ ए एंड बी वेयर 60,000 40,000, और उसका इंटरेस्ट देखिए पहले से दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए क्या है, प्रॉफिट है, इसलिए प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे हम लोग, या लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी। तो ए का है 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का है 3,000, तो यहाँ लिख देंगे 3,000। तो अब हम लोग इसको अगर टोटल करें तो यहाँ हो जाएगा 2,43,000, 2,43,000। ठीक, अब इसमें से हम इसको डिडक्ट कर दें, तो ऐड करें अगर, तो ऐड करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 6 2 8 8 और 5 13 1 3 1 4 1 5 5 6 11 11 और 3 14 4 1 1 2, तो 1,35,000 आ गया। तो ये हो गया हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए एंड बी, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी के बारे में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, तो हमको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर इक्वली डिवाइड करें इनको, तो हम लोग, तो इनका इक्वली जो डिवीज़न करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 50 और 67,500। इस तरीके से हमारा ये 1,35,000 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब हम लोग अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें अगर, तो आंसर में हमारा क्या रहा, डिविजिबल प्रॉफिट हमारा जो है 1,35,000 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बेस पे, अब हमारे पास प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले हम लोग कैपिटल का क्या लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस BD। इनका कैपिटल कितना है 6 लाख, और एक का कैपिटल है कितना 2 लाख। ठीक, अभी हमने क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 36,000, और इसका कैपिटल है कितना 12,000 बी का, और फिर बी की सैलरी थी, तो यहाँ लिख देंगे बी सैलरी, बी की सैलरी थी 60,000। अब बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कितना 67,500 और 67,500। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, ड्राइंग जो है 60,000 है और 40,000 है।
तो 60,000 और 40,000 और यहाँ लिख दें 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,000। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल कर लें। टोटल करने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वो कैपिटल अकाउंट का वो बैलेंस हो जाएगा एज पर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, तो बैलेंस कर लें अगर हम लोग, तो यहाँ पे टोटल करने के बाद हमें पे क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे कह रहे 6,00,005 6 7 13 3 1 1 7 3 10 7,03,500 5 7 2 9 6 6 12 1 13 के 3 1 3,39,500 7,03,500 3,40,500। ठीक है, अब हम इसका अगर टोटल करेंगे, इसका टोटल करने के बाद हमें यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन 2,06,41,500 और इसका बैलेंस आ जाएगा 2,98,500। तो ये हमारा जो है ये कैपिटल अकाउंट का ये हमारा ये बैलेंस हमारा हो जाएगा कैपिटल अकाउंट का, वो भी थ्रू कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा वो भी किसके थ्रू, ये हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अगर हमने अडॉप्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट हमारा इस तरीके से बन जाएगा। पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस ले लेंगे कैपिटल का, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के ए और बी का, फिर बी की सैलरी, फिर उसके बाद प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अभी जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसके डेबिट साइड में ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के बाद इन दोनों का बैलेंस करेंगे तो हमें 6,41,500 का बैलेंस आ जाएगा ए का और 2,98,500 बैलेंस आ जाएगा बी का। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना आपको बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पे वीडियो पे कमेंट करें, हम उसको और अच्छे से इसको रिजॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करके हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।